participants from this contest? I'm looking out for a very unconventional voice, which is absolutely not a clone and a new voice. Someone who can sing songs of today's generation, the songs of 2015, 2016. And definitely, I will be definitely giving breaks to about 5 or 6 of them, at least from The Voice. And earlier also, I have been promoting new talent because that's always been very important for the growth of a composer. And in Voice, we have some fantastic singing, very unconventional voices we found. And a lot of fun on the show. This concept has never failed. The show has always worked in every country. And it's a grand show. The concept is very good. No matter how you look, no matter how you talk, it's all about the voice. Yeah. My question is for Mr. Rajesh Iyer, this side. Here. Yeah. You earlier launched India Puchega Sabse Shanakon in the weekday band, and now broadcasters are experimenting a lot with the weekday band as well. So why did you not want to place this show in the weekdays as well? When we launched SSK, that was the launch of the brand of ANT-TV at that point in time. So we had an objective to achieve with that, and SSK did that job for us. As far as Voice is concerned, it's our throw of the dice as far as the weekend programming is concerned. We have the weekday programming in place. We want the weekend programming to come up. And Voice is the biggest show, like you guys know. And that's the show which we're going to put up starting this weekend. My name is Vedang. I'm from telechakra.com. My question to you is, how is this show different from the other singing reality shows that are there? What is the differentiating factor? Well, you've just got a glimpse of what we have in the AV. I mean, obviously, the show is really big, very differentiated from all the singing formats. It is, the first time, the emphasis is given to the voice and not to the entire package. So the blind auditions is, of course, the big differentiating factor. But also the show has 3 phases, which is the blind, which is the battle and the live round. So obviously there are enough, the graph is, really, turbulent in terms of, getting the maximum emotional connect with the audiences. Good evening to all. This for हिमेश, आप काफ़ी समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, तो मुझे आपसे पूछना है कि बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में कितना चेंजेस आपने देखा है अब तक? बॉलीवुड में जो चेंजेस है वो एवरी ईयर आते रहे हैं. सबसे बड़ा ये चेंज है कि इस वक्त करीबन 25,000 सिंगर्स मार्केट में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत कम है जो इतने अरसों से चले जा रहे हैं. और उसका लाइव प्रूफ है मिस्टर मीका सिंह, सुनिधि चौहान या हमारे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स यहाँ पे. तो इतने सालों से वो अगर कोई मकाम तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली उनकी मेहनत है और बहुत ज़बरदस्त डिवोशन है. तो वो डिवोशन इन 25,000 सिंगरों में से जो लोग रखेंगे वो बहुत आगे जा सकेंगे. एक प्लस पॉइंट उनके लिए ये है कि प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ब्रेक बहुत आसानी से मिल जाता है. मुश्किल ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हर साल कंपटीशन बढ़ेगा. लेकिन ये भी तो है कि जब पहले बहुत मुश्किल था एक ब्रेक मिलना, आज ब्रेक मिलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. इतने बड़े बड़े शोज़ हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका ही नहीं मिला. मौका है और वो बहुत बड़ी बात है. ये रियलिटी शोज़ की वजह से, ये इतने फिल्में, इतनी जिस तरह का मीडिया कवरेज आप लोग देते हैं सिंगर्स को बहुत शुरुआत की स्टेज पे, तो वो बहुत बड़ी बात है. वो बहुत बड़ा चेंज है. एंड कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक बहुत अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है. पहले सीडीज़ बिकती थी, कैसेट्स बिकते थे, अब रिंगटोन्स है और डिजिटल फॉर्मेट पे म्यूज़िक बिकता है. तो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक का रीइन्वेंशन होता जा रहा है. उसमें जो रेट्रो किस्म का म्यूज़िक था वो मुझे लग रहा है कि
थोड़ा सा पीछे रह रहा है, बिकॉज ज़्यादातर देखा गया है कि सेल्स बिलो 25 के हो रहे हैं. तो जो 25 के अबव हैं, जो म्यूज़िक सुनते हैं, उनको थोड़ा सा अगर और कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द सेल्स, तो और उस किस्म का म्यूज़िक भी और बनना शुरू करेगा. वरना मोर एंड मोर म्यूज़िक यूथ की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द सेल्स. पहले सीडी सब लोग खरीदते थे. ये एक डिफरेंस मुझे लग रहा है कि हो रहा है. बट येट आज का यूथ एक चीज़ बहुत सोलफुल मेलोडीज़ को पसंद करने लगा है, वापस अच्छे वर्ड्स आने लगे हैं, तो वो चेंजेस बहुत अच्छे हो रहे हैं. एंड नाउ पहले हम तबला ढोलक पे म्यूज़िक बनाते थे, अब EDMs पे म्यूज़िक बनाते हैं. ये डिफरेंस है. मेरा सवाल अब तीनों जजेस से है. मेरा नाम आलोक है. सुनिधि, मिका, हिमेश, TRP का गेम भी होता है और सास बहू और बेटियां भी आपके सामने होंगे, चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड्स हो. इस जंग को किस तरीके से देखते हैं आप तीनों? मिका, आप शुरू कर सकते हैं. पहले मैं आपसे पहले भी मैं बोल चुका था कि मैं चाहता हूं कि जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको चांस मिले, उनको मौका मिले एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का. और नो मैटर सामने कौन सा शो चल रहा है, बड़ा शो चल रहा है, छोटा चल रहा है, लेकिन हमारी जो एक ड्यूटी है, हमारे जो एक फ़र्ज़ है, हम न्यू कमर्स को चांस दें. कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई पंजाब से आया, तो सबके दिलों में एक इच्छा होती है, एक ड्रीम होती है कि हम स्टेज पे परफॉर्म करें. वो स्टेज जहाँ पे हिमेश हैं, सुनिधि हैं, मैं हूँ, पूरी ऑडियंस है, नया चैनल है, नया फॉर्मेट है. सो मेरा तो यही टारगेट रहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से न्यू कमर्स को हमें चांस देना चाहिए. अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द न्यू कमर्स. और मिका जी, ये जो सिंगर्स आपके यहाँ परफॉर्म करने आए, एक सेकंड पाजी, जवाब हो जाने दो. सुनिधि प्लीज, आप भी, और हिमेश जी आप भी. मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, जो आपने सास बहू की सीरीज की, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है आज टीवी पर, लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ इतनी बड़ी है कि हर घर में आज भी, चाहे वो बच्चा हो या 80 साल का इंसान हो, गाना सबको सुनना अच्छा लगता है. और घर में अगर कोई भी गाता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं. कोई ख़राब से ख़राब भी रियलिटी सिंगिंग शो आता है ना, तो लोग जानना ज़रूर चाहते हैं कि यहाँ पे सिंगर्स अच्छे हैं या नहीं. वी आर प्राउड that in voice you'll find only good singers, not below average. It will start from good and go to excellent singers. So I'm very happy about that. आपने जब TRP की बात की, तो TRP की बात तो है, बट TRP के लिए जब एक शो बनता है तो हम लोग एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं कि TRP तो होगी तो ही वो सिंगर बड़ा बनेगा ना. अगर वो TRP नहीं होगी तो वो सिंगर को प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं वो TRP उस चैनल के लिए या उस शो के लिए या हम सेलिब्रिटीज के लिए या ब्रांड के लिए बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा वो जरूरी है उस नए न्यू कमर के लिए जो स्टार बनने वाला है, क्योंकि अगेन उसके घर में रोजी रोटी आनी चाहिए उसके घर. This question for all of you, Mika ji, Sunidhi and Himesh ji, I am here. एक परसेप्शन बन चुका है डांस को लेके, एनीबडी कैन डांस, ABCD. सो इसी वे में क्या ये परसेप्शन भी बन जाएगा धीरे धीरे कि एनीबडी कैन सिंग? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये एटलीस्ट ये शो में, द वॉइस में, तो वॉइस की ही बात है. यहाँ पे एनीबडी की बात ही नहीं है. बात ये है कि वो कितनी कमाल वॉइस है कि हम सिर्फ सुनकर वो बजर दबाते हैं और उसके बाद हम आपस में इतना उस सिंगर को रिझाने की कोशिश करते हैं, चाहे मजाक में ही सही, लेकिन हम चाहते हैं कि जेन्युइनली वो हमारी टीम में आ जाए. तो किस लेवल पे वो सिंगर ने हमें प्रभावित किया होगा कि हम चाहते हैं कि ऑन नेशनल टेलीविजन हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू मेरी टीम में आ जा क्योंकि मेरी टीम स्ट्रांग होगी. तो स्पोर्टिंग स्पिरिट गेम का तो है, लेकिन वो सिंगर में दम होगा तभी वो होगा. तो एनीबडी कैन सिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है इस शो में, द वॉइस में. मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा एनीबडी कैन सिंग, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन सिंग, ये दोनों लाइनें कहावत जैसी सुनाई देती हैं और कहावत ही हैं और रहेंगी. जो सच में गा सकता है वही दुनिया को सुनाई देता है और जो नहीं गा सकता वो नहीं सुनाई देता. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस. वेल, अगर कोई डांस में गलती करता है तो लोग उसको पकड़ नहीं पाते. कोई भी स्टेप मिस हो गया. सिंगिंग बहुत मुश्किल चीज़ है. सिंगिंग हम लाइव गाते हैं, अगर हम वर्ड भी भूल जाते हैं तो ऑडियंस होटिंग करना शुरू हो जाती है. कहीं गलत गा जाएं, कुछ मिस हो गया, गला खराब है, तो सिंगिंग एनीबडी कांट सिंग, बिकॉज आई थिंक गायकी गॉड गिफ्ट है. सबसे पहले तो भगवान की बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा होनी चाहिए, उसके बाद हमारी मेहनत है. सो डांस में है कि चलो
आदमी 10 साल मेहनत करे तो डांस आ जाएगा। अगर मैं सोचूं कि मैं 50 साल रियाज कर लूं और मैं लता मंगेशकर बन जाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मिक्का जी, मैं सब जजेस से हिडन टैलेंट जानना चाहूँगा। और आज आप जिस मकाम तक पहुँचे आप सब लोग, तो आप जो कंटेस्टेंट आएंगे आपके यहाँ परफॉर्म करने, उनकी किस हद तक तैयारी होनी चाहिए, वो आप एक मैसेज दीजिए सब मिलके, और अपने अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में बताइए कुछ। वेल, तैयारी जो भी आजकल बच्चे आ रहे हैं सारे बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही तैयारी से आते हैं, क्योंकि वो जो भी शो पे आ रहा है उस तय करके आया कि मुझे अच्छा ही गाना है। एंड उसके बाद हम पे डिपेंड है कि हमें कौन सा सिंगर अच्छा लगा। उसके बाद सिंगर्स पे डिपेंड है उनको कौन सा कोच पसंद आता है। तो ये इस शो का फॉर्मेट है जो कि बाकी शोज से बिल्कुल अलग है। हिडन टैलेंट का जहाँ तक सवाल है, मुझे लग रहा है कि उनको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनकी आवाज़ किसी से मिलती जुलती ना लगे, और एक कॉम्पोजिशन को, क्योंकि जड़ क्या है कि हम आज के गानों में फ्रेशनेस जो ढूंढते हैं, वो फ्रेशनेस उनकी आवाज़ में मिले, ना कि वो सुनी सुनाई लगे। तो वो जैसे ही होगी उनकी तरफ बजर दबने ही वाला है, बिकॉज वो फ्रेश अनकन्वेंशनल क्वालिटी हम लोग वॉइस में ढूंढ रहे हैं जो आज की आवाज़ बन सके, द वॉइस बन सके। My question is for Mr. Rajesh. What do you, as some... We have the right team working on it, so we are pretty confident about this. Okay. करण, ब्रिलियंट, मतलब जो आज आपने होस्ट किया ना, वेरी स्लीक, वेरी क्रिस्प। थैंक यू सो मच। आपके am I right ना? Well, I'm hoping you are right. बहुत ही स्पॉन्टेनियस था आपका। शुक्रिया सर। जो आपके जो सह कलाकार हैं टीवी के, वो भी होस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है इसमें आप आगे निकल जाएंगे? जी, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि जो काम करूँ वो अच्छा काम हो, और अच्छा काम हमेशा आपको आगे लेके जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा शो है, बहुत बढ़िया शो है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतने बेहतरीन कोचेस हैं शो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सक्सेस की जर्नी है, ट्रेन में मैं भी पीछे चढ़ जाऊँ इन सारे कोचेस के पीछे, और मैं भी आगे निकल जाऊँ। जी बिल्कुल। मैं सुमित जी, जिस रियलिटी शो में हिमेश बैठते हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, उसका होस्ट हमेशा स्टार बन जाता है। मीका बाजी, थैंक यू। एक बार इन्होंने ऐसे ही किसी के लिए बोल दिया था, हमारा दोस्त ही है आयुष्मान, तो कोई बात चल रही थी, इन्होंने पता नहीं रोका, बोलते पहले मेरी बात सुनो, याद रखना मेरी बात, तुम आने वाले एक स्टार हो। तो मैं सोच रहा हूँ सिंगिंग शो है, इस बंदे को इन्होंने क्या बोला, वो स्टार बन गया, देखो आज। तो ये तय है कि अगर हिमेश भाई ने इस शो पे एक बार भी बोल दिया ना कि सिंगिंग ठीक है, लेकिन करण मेरी बात याद रखना। देखो, मैंने उस वक्त बोला था आयुष्मान तुम स्टार बनोगे, और वो स्टार बना, ऊपर वाले की मेहरबानी है। नहीं, मेरे हाथ देखकर बताइए मेरा नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो सुपरस्टार हो यार, तुम्हारे पास तो वो कंटेस्टेंट भी जा रहा है, लेकिन करण के लिए मैं ये बोलूंगा कि वो स्टार है और अब वो सुपरस्टार बनेगा, वो बहुत आगे जाएगा, बहुत टैलेंटेड है, और फिल्में करेगा। रोल अच्छे सिलेक्ट करना, छोटे रोल मत करना। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मीका बाजी, एंड थैंक यू हिमेश जी। मैं तो हिमेश जी को यही कहूँगा, सर आप ही प्रोड्यूसर हैं, रोजी रोटी में मुझे भी लाइन में लगा देना थोड़ी सी। हिमेश, काफी समय से आप रियलिटी शो से दूर थे, सारे मध्यम वर्गीय परिवार आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आप आए। रोटी आपसे ही मिलती है? देखिए, रोटी तो है, लेकिन इस शो में रोटी की जहां तक बात है, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि रोटी के आगे क्या होता है। रस मलाई होती है और सीजन मैंगो की है, तो मैं ये कहूंगा कि मैंगो, रोटी, स्ट्रॉबेरीज, आइसक्रीम्स, और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये सब खा नहीं सकता हूं। 8:30 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता हूं, आइसक्रीम मैंने बंद कर दी है। तो ये सब मेरे कंटेस्टेंटों को मिले और बरकत मिले, जो मैं हमेशा कहता हूं कि हर कंटेस्टेंट को मिले, हर सिंगर को मिले, और वॉइस के उस सिंगर को जरूर मिलेगी, क्योंकि 5 सिंगर को मैं अपनी फिल्मों में गवाऊंगा। नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूं, सुपर हिट गाने लिख लेना, खत्म। हिमेश, आजकल आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? तैयार होने में अभी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अभी ज्यादा सच संवरना नहीं पड़ता, वजन घट चुका है, कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं तो ठीक ठाक लगता है, वजन छुपाना नहीं पड़ता।
वैसे आप सबको बता दूं, वजन घटने के साथ साथ हिमेश सर की बॉडी भी बहुत कमाल की है। ये body- मुझे हर सुबह दिखते हैं जिम में, बहुत ही हैवी आर्म्स मार रहे होते हैं सर। अभी करना पड़ेगा यार। और इसकी झलक आप देखेंगे इस शो में, हमारे पहले एपिसोड में। पहले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग का शो नहीं है, ये आवाज का शो है। और वो आवाज जो आपको पहले एपिसोड में मिलेगी, वो वॉइसेस देखना आप दंग रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे बहुत। करण, मिका हमेशा चश्मे में देखते हैं, आपकी आंखें में जो गहराई है वो कब दिखेगी? एक्चुअली चश्मे से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मेरी आवाज़ ही पसंद है, तो मैं दिखाई दूं या ना दूं, मेरी आंखें नजर आए या ना आए, लेकिन जब लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं तो मेरा मेन मुद्दा रहता है कि मेरी आवाज़ अच्छी रहनी चाहिए। बाकी शक्ल तो भगवान ने अच्छी दी हुई है, बट मेरी आंखें आप देखने जाते हो तो देख सकते हो, आंखें देखो, बहुत खूबसूरत आंखें मेरी। मिका, इस शो में ज्यादा नाराज वाराज गुस्सा वस्सा तो नहीं होगे ना? बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, हिमेश जी, शान, सुनिधि। तो सबसे अच्छी बात है कि इस शो पे हमें बिल्कुल लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ये शो ही बहुत अच्छा है। How sad is that? या वेरी सैड। बट मैं एक कंप्लेन है कि बहुत लड़के जो हैं बिना वजह सुनिधि की टीम में चले जाते हैं। बिना वजह? बिना वजह ये है कि वो कोच तो अच्छी हैं, लेकिन ऐसे ही लट्टू हो जाते हैं यार। ये तो वो तो तरीका और शो गलत है में ना भाई। अच्छी बात क्या है कि पहली बार मैंने ऐसा देखा कि इस रियलिटी शो में दी वॉइस में कि बहुत ज्यादा गर्ल्स आई हैं। नहीं तो क्या होता था कि हर रियलिटी शो में लड़के 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 थे, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आई थिंक पेरेंट्स पहले से जाग गए, इंडिया के जो माँ बाप है अपनी बच्चियों को आगे भेज रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि आप सिंगिंग करें जाके। सो दी वॉइस में आपको पहली बार ऐसा नजर आएगा कि लड़कियां बहुत आई हैं सिंगिंग के लिए। बहुत कमाल की बात कही है यार, बहुत कमाल। सुनिधि, आप शो में भी इन दोनों के बीच में ही बैठेंगी ना? हाँ जी। नहीं, पता नहीं कब जो भी हो लड़ने लग जाए तो यू विल बी इन बिटवीन देम ना? जी, मैं बीच में हूँ और इस वजह से लड़ नहीं सकते एक्चुअली। वन थिंग मोर, सुनिधि, लुकिंग स्टनिंग। थैंक यू। पता है क्या हो, जब आपने एक्ट किया, आप आगे आगे ना, मेरा कैमरामैन आप पे ही फोकस रह गया। मीका जी पीछे आए तब तक भूल ही गया, तो मैंने उसको कहा कि अच्छा थैंक यू, वेरी स्वीट ऑफ यू। इन तीनों को देख के मैंने भी रोटी थोड़ी सी कम कर दी, बिकॉज ये तीनों इतने माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं, स्पेशली हिमेश, शान, सुनिधि। ये पूरा तय करके आए थे कि यार हमने दी वॉइस करना है, तो पूरा फिट होके आए हैं। तो इनको देख के मैं भी थोड़ा सा अभी मूड में आ गया कि यार मुझे भी फिट दिखना है। तो जोरदार तालियां दोनों के लिए, इनकी मेहनत के लिए। Sunidhi, this show, Jennifer Lopez was part of this show internationally. Yes. So can we draw parallels with Jennifer Lopez and with you? There's no comparison. You know, ये हमारा ये देसी शो है, The Voice है, but The Voice India भी है। तो अलग-अलग चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। I mean, हमारा जो देसी तरीका है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारा जो तरीका है कंटेस्टेंट्स को सुनने का, हमारा जो तरीका है उन्हें प्यार देने का, वो अलग ही होगा. There is no comparison between Hollywood and Bollywood here. But yeah, it'll be fun. You'll enjoy yourself for sure. Okay, can we request three of you after the questionnaires, like if you can sing live for us and if you can do some mean Jennifer Lopez moves? Moves? Yeah. Are you a fan of Jello? I'm with you. Okay. What do you want me to sing? I'm with you, like I favor you. I can't hear him. What? Like in comparison to Jennifer Lopez, I favor you. How sweet. Yeah. एक बार इस बात पे तालियां तो बजा दो यार. सुमित जी, आपको जेनिफर लोपेज में अच्छा क्या लगता है? मैंने कहा ही कहा वो अच्छी लगती है. What do you like the most, singing or singing? सर सुनिधि को देख लिया, किसी को देखने की जरूरत नहीं है. Thank you. चलो एक एक लाइन गा देते हैं. हो खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं. हाँ तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोक चौंकने का नहीं, तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं. तू मेरे अगल बगल है मैं तेरे, तू मेरे है मैं तेरे अगल बगल हूँ. ना सुनिधि. Anything, right?
और प्यारे खिस गए सारे दर्द भरे नगमे, अब रैप वैप सा रॉक वॉक सा बजदा रग रग में। मियां मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, ओ पिया मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का मार, ओ तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। थैंक यू करण। आई थिंक जब सब गा रहे हैं यहाँ पे आलोक जब सब गा रहे हैं तो आई थिंक हम भी आपकी आवाज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जब शो ही सिंगिंग का है तो हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है, और जजेस भी यहाँ पर बैठे हैं। जिस तरीके से हिमेश ने कहा आप सुपरस्टार हैं और हमारी टेलीविजन के आप सुपरस्टार हैं, इतने सारे करण हैं और बहुत सारे करण एंकर भी कर रहे हैं, तो कंपैरिजन अच्छा हो रहा है। तो चाहेंगे जो डांसिंग टैलेंट हमने आपका देख लिया, एक्टिंग टैलेंट देख लिया, एंकरिंग हम देख रहे हैं, अब लोगों के सामने सिंगिंग का टैलेंट प्रेस के सामने एटलीस्ट। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। इतनी अच्छी आवाजों के बाद मेरी आवाज वैसे ही बुरी है और भी बुरी साउंड करेगी, तो मैं आज नहीं गाता। गाना ही पड़ेगा, गाना ही पड़ेगा। कम ऑन करण, एक लाइन तो बनती है सर, पूरा गाना बनता है। ऐसी थोड़ी आपको इस शो में लिया है, कुछ तो रीजन होगा। सडनली ना मेरे पसीने छूट रहे हैं अभी। करण अब हमारी मैं एग्जैक्टली फील कर रहा हूँ कि सिंगर्स कैसे फील करते हैं जब इस स्टेज पर आते हैं। कौन सा कुछ भी गा दे एक बार जो तेरा दिल करता है। कौन सा गाना गाऊं यार? आतिफ वाला गा दीजिए। आतिफ वाला गा दो कोई। पिटवाओगे मतलब इन्हीं कोचेस से सबसे। मैं एक काम करता हूँ, मीका बाजी आपका गाना गाता हूँ, साथ में मेरे साथ एक लाइन गा दो कि थोड़ा मैं भी सुरीला साउंड करूंगा। चलो कौन सा? हमको कहते सुपरमैन। हमको कहते सुपरमैन, हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडीकैम 2 PM बंदे एट योर सर्विस मैम। ओ तन्नू मतलब करदा बेमतलब करदा, क्या बात है। बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे साथ होने ना दे, एक दूसरे को हम जोड़े ना दे। मैं तेरा हीरो, हाँ हीरो, हाँ हीरो, सुनी थी मैं तेरा हीरो। बात आपने सुनी थी कि कही है, लेकिन आप मेरी टीम में आ जाओ। यही मेरी कुछ इंटेंशन थी। इनकी हीरो पर्सनल लाइफ में बने हुए हैं जी। फिलहाल जिनका मैं हीरो हूँ और हमेशा रहूंगा वो है मेरी मदर। आई थिंक मेरी मॉम के लिए मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ और उससे बड़ा नहीं होता, इसलिए मुझे मेरी मॉम से बहुत मोहब्बत है। तो डेफिनेटली आई थिंक माय मदर इज द हीरोइन इन माय लाइफ एंड आई एम द हीरो इन हर लाइफ। यस। हाय सुनिधि, दिस इज नवीन फ्रॉम टेली चक्कर। सुनिधि, हम लोगों ने जिस तरह हिमेश सर को देखा है ऑन स्क्रीन अपार्ट फ्रॉम सिंगर, हम लोगों ने ये भी देखा कि सुनिधि हैव टर्न्ड इन साइज 0, तो ऐसी कोई चांसेस है कि सुनिधि को भी अब हम लोग सिंगिंग के अलावा बड़े पर्दे पर देखेंगे? देखिए, ऐसी कोई इंटेंशन तो नहीं थी, कोई एजेंडा नहीं था, बस पतला होना था क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई थी। मैं बहुत मोटी हो गई थी। तो हाँ, अगर मुझे एक्टिंग का कोई अच्छा रोल मुझे ऑफर हुआ तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। आई मीन सब कुछ करना चाहिए जो आपके हाथ में है। आई थिंक ये तो मेरे हाथ में है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। माइक आगे दे दो उनको। Any more questions? Anyone? Are we done? Yes, thank you sir, thank you everyone. चलिए on that note, thank you everybody कि आप सब यहाँ पर आए, and thank you so much coaches कि आपने अपना वक्त दिया, and thank you sir. Thank you sir, thank you. Thank you. God bless and all the best. Guys, the voice.
भाई ये शो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा हिट रह चुका है, हर जगह जहाँ पर भी ये शो आया चला है, तो बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग कि इस शो के साथ जुड़े हुए हैं, जो शो वर्ल्ड वाइड चला है। और ब्लाइंड ऑडिशंस जो इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई आप उसकी सिंगर की आवाज़ नहीं सुनते हैं और जब आपको आवाज़ पसंद आती है तो आप बज़र दबाते हो, तो वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत नई फ्रेश वॉइसेस है। वो कैसा दिखता है उसके ऊपर जजमेंट नहीं होता, और लुक बहुत बड़ा है, एंटरटेनिंग शो है, फन शो है, पूरे परिवार के लिए ये शो बना हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग वॉइसेस मिल रही है। और मैंने जितने भी शोज़ किए हैं उस शोज़ में से नए नए वॉइसेस को हमेशा आगे लाने की कोशिश की है, वो बड़े बड़े सिंगर्स बने हैं और यहाँ से मैं डेफिनेटली उन्हें और 4 या 5 ऐसे वॉइसेस देना चाहूँगा और दूंगा, क्योंकि मुझे जो वॉइसेस यहाँ मिल रहे हैं वो इतने गज़ब के हैं कि आने वाली फिल्मों में मेरे लिए वो गाना भी गाएंगे, और बहुत अनकन्वेंशनल क्वालिटी ढूंढ रहा हूँ जो आज के गाने गा सके। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। जज के लिए कितना कठिन होगा सारे सिंगरों को? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए कॉन्सेप्ट ही पूरा उल्टा है कि यहाँ जज जो है यानी कि जो कोच है वो सिंगर को सिलेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि सिंगर कोच को सिलेक्ट कर रहा है। जब बजर कोच दबाता है तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं एक मजाक के तौर पे, एक फन एंटरटेनिंग वे में, वेदर इट इज़ मीका, वेदर इट इज़ सुनिधि, वेदर इट इज़ शान या मैं, हम लोग अपने अपने तरीके से उस सिंगर को रिझाने की कोशिश करते हैं कि तू मेरी टीम में आ जाए ताकि मेरी टीम अच्छी बने, क्योंकि हमें वो वॉइस बहुत पसंद है। और कभी कभी जब ऐसा होता है कि बजर चारों लोग दबा देते हैं तो और कठिन हो जाती है उस सिंगर के लिए चुनना, पर वही मोमेंट होता है जो बहुत कठिन होता है लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाता है शो के लिए भी, हमारे लिए भी, और पता चलता है कि कौन सिंगर कितना प्यार करता है, कितना फोकस करेगा। एंड मैंने अक्सर देखा है कि उस वक्त जो मुठभेड़ होती है वो बहुत 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 एंटरटेनिंग हो जाती है। एंड वी हैड सम वेरी ग्रेट मोमेंट्स ऑन द शो वाइल सिलेक्टिंग द कंटेस्टेंट्स एंड द सिंगर्स इन अपनी अपनी टीम में। तो उस वक्त मैंने तो अपना तकिया कलाम एक बनाया है कि भाई जब मुझे मिल जाता है तब मैं राम लखन का वो जो गाना है दिन दिन धा तक दिन दिन धा, वो तो करता ही हूँ, क्योंकि तब सचमुच उनकी आवाज़ सुनकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जहाँ तक उनको रिझाने की बात है तो मैं थोड़ा सा कम बोलकर मेरी खामोशियों को बोलने का मौका देता हूँ। ये मेरा कहीं ना कहीं अंदाज़ है उन लोगों को कहकर कि भाई मेरी खामोशियाँ बोल रही है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी टीम में आ जाओ। हमेशा डायलॉग रहती है जब गाना अच्छा लगता है तो माइंड ब्लोइंग, इस बार आप क्या क्या सोचेंगे? इस बार तो डेफिनेटली मैं जब मुझे किसी की आवाज़ अच्छी लगती है तो सुपर फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक नया वर्ड, फैंटास्टिक वर्ड आपने सुना होगा, उस फैंटास्टिक की जगह पे मैं बोल रहा हूँ वाओ टैस्टिक। और लड़की की अगर आवाज़ पसंद आए तो वॉइसलिशियस। तो ये 2 वर्ड्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे और मुझे दिल से महसूस हुआ कि वो वॉइस जो इतनी बुलंद हो और किसी को मजबूर कर दे बजर दबाने के लिए, उसके लिए कोई नया वर्ड होना चाहिए जो उसे प्रेरित करे, इंस्पायर करे। और रोल इस शो को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट मैं काफ़ी टाइम से बहुत रियलिटी शोज़ के मुझे ऑफर आए, लेकिन मुझे वो नहीं करने थे क्योंकि कुछ एक्साइटिंग नहीं था। जैसे ही ये आया मैं इस शो की फ़ैन भी रह चुकी हूँ। मैं वॉइस जो USA है वो ज़रूर देखती हूँ, मैं बहुत फ़ैन हूँ उसकी। तो जब पता पड़ा ये इंडिया में आने वाला है तो मैंने झट से हाँ कर दी, क्योंकि आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ रियलिटी शो विच इज़ ऑथेंटिक। और सच में सिर्फ वॉइस के ही बल पर हमें उन्हें जज करना है, कोई पर्सनालिटी नहीं, कैसे आप दिखते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम है, कोई सोच में, बॉडी में, इट डजंट मैटर, इट्स ओनली योर वॉइस। तो आई थिंक दैट्स रियली। जज के लिए कितना कठिन होगा सिंगर को सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें ना तो देखना है ना तो आप नाम जानते हैं। बहुत बहुत कठिन होता है। इनफैक्ट सिर्फ वही परफॉर्मेंस नहीं, आगे तक सोचना होता है कि अगर मैं इसको टीम में सिलेक्ट करती हूँ, जो कि हो ही जाता है, अगर आप पलट गए तो आपकी टीम का मेंबर हो जाता है वो, तो वो आगे परफॉर्म अच्छा करेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें वाइल हम लोग उनको सुन रहे हैं सोचनी पड़ती हैं और फिर डिसीजन लेना होता है। तो सब अच्छा हो गया, लेकिन इट्स ऑल गुड। इस शो के फॉर्मेट के बारे में जानना चाहेंगे? फॉर्मेट ये है कि एक सिंगर पीछे से जब गा रहे हैं ऑडिशंस के बाद, तो हमारी पीठ उन्हें सुन रही होगी, हम ऑडियंस को देख रहे होते हैं।
और फिर अगर बहुत ही कमाल की आवाज़ लगी तो हम चारों मुड़ते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 2 लोगों को अच्छी लगती है तो सिर्फ 2 मुड़ते हैं। अगर 2 मुड़ते हैं तो 2 लड़ाई करेंगे कि कौन किसकी टीम में जाए। कभी कभी सिर्फ 1 मुड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टीम का हो जाता है। अगर लेकिन सारे मुड़ गए 2 से ज़्यादा या 4 तो जो कंटेस्टेंट है, जो सिंगर है, उसको चूज़ करने का मौका मिलता है कि उसको किस जज के पास जाना है। और हम उसके सामने भीख मांगते हैं, हम अपने आप को बेचते हैं कि प्लीज़ हमारी टीम में आ जाओ। और फिर भी उसके पास ही उसकी चॉइस होती है वो किसके पास जाना चाहता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। दिस इज द ऑडिशन राउंड, बट देन देयर इज अ बैटल राउंड, बैटल पेयरिंग होती है जिसमें 14 लोग हैं टीम में और उनको फिर 7 करना पड़ता है, 7 लोगों को चुनना पड़ता है। तो आपको पता पड़ेगा जैसे आप आगे देखेंगे। फिर लास्टली आपके गाने से खत्म करते हैं। आप कोई गाना इस वॉइस ऑफ सुबह की धूप पे इसी की दस्तखत है, इसी की रोशनी उड़ी जो हर तरफ है। ये पानी है, ये आग है, ये खुद लिखी किताब है, प्यार की खुराक सी है पीकू। थैंक यू।